समान एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सलोक महल्ला चौथा हाँ टुडेंदी सजना सजन मैंडना जन नानक अलख ना लखीय गुरमुख देह दिखार महल्ला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच्चै तिस बिन रहन न जाई सतगुर मिले ता पूरा पाइए हर रस रसन रसाई पौड़ी कोई गावे को सुने को उचर सुनावे जन्म जन्म की मल उतर मन चिंधिया पावे आवन जाना मेटिया हर के गुण गावे आप तरह संगी तराहें सब कुटुंब तरावे जन नानक तिस बलिहारण जो मेरे हर प्रभ पावे जन नानक तिस बलिहारण जो मेरे हर प्रभ पावे। वाहिगुरु जी
का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कानड़े की वार दी ਇਹ ਅੰਤਲੀ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ 1318 ਅੰਗ ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਤ ਜਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣ। ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ 10:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਗਲਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, GURD ਹੈ, GURU ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖੋਗੇ YouTube ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ, ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਐਡਰੈਸ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ, ਕੈਲੰਡਰ, ਜੰਤਰੀ, ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕੋਗੇ। ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਦੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਤ ਦੀ ਕਥਾ ਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ
आम इतिहासकारां तो सानू ये साखियां नहीं मिलणगियां। सच्चे पातशाह का जीवन वरतांत आप जी इस माध्यम के राही, ऐप के राही, नैट के राही सुन सकते हो। इंडियन समा है 8:30 तो लैके 9:30 समा यही रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग नहीं होती कि किसी कंट्री के टाइम के अकॉर्डिंग सुनाया जा सके। अगले समय की गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। भगत वशल सुन हो तुह निराश हृदय, पतत पावन सुन आसा उरतार हो। अंतरजामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन भय परम टार हो। जलधर संगम के फल सेम्बल द्रम, चंदन सुगंध सन बंद मैल गार हो। अपनी करनी कर नरक हूँ न पाऊँ ठोर, तुमरो बिरद कर आसरु संभार हूँ। अपनी करनी कर नरक हूँ न पाऊँ ठोर, तुमरो बिरद कर आसरु संभार हूँ। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी, तुम अपना बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखनहार दयाला, नानक कर के गुले। राखो राखनहार दयाला, नानक कर के गुले। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जी, वडभागी हो, साहिब नसीब हो, जो धन धन साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान बख्शिशां रहमतां अजमतां भरे महिमामय स्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की परम सुखकारी हजूरी का आनंद मान रहे हो, अथवा देशों विदेशों में दूर दराडे बैठे हुए भी टीवी चैनल इंटरनेट के माध्यम राही गुरु के शब्द का आप जी रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही विचार विच अज का पावन पवित्र शब्द सिख जगत की सन्मान सत्कारयोग शख्सियत
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ इस पावन पवित्र स्थान के सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिब तिन्हां पासों प्यार सहित आप जी ने सरवण किया। शब्द विचार प्रारंभ करा इस तो पहला आप जी की असीस लोचदा हाँ। गुरु बख्शिश की गुरु फतेह प्रवान करो असीस चोली पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन शब्द अंदर इस वार दी आखिरी पौड़ी 2 श्लोक ते नाल पौड़ी जिस दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर रहिंदा किथे है, उन्होंने मिलन का तरीका की है, कौन है जो मिला सकता है, उहदे नाल प्रीत किवें पवे, प्यार किवें पवे, किवें गुरमत गाड़ी राह ते चल के जो जीवन का मंतव है, मनोरथ है, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया दा जो इस जीवन का लक्ष्य है, निशाना है, उत्थे तक किवें पहुँचा जाए। मेरे साहिब जी ने कृपा की थी। धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह कृपा कर रहे हैं। श्लोक महला चौथा। हौ ढूंढेंदी सज्जना सज्जन मैंडे नाल। ढूंढेंदी का भाव है लभ रही, क्योंकि परमात्मा के सन्मुख जीव नूं जदों पेश किया गया तो इहदी तस्वीर जो है वो इस्त्री दे नाल दिती गई कि परमात्मा एक पुरख है तो बाकी सारियां उहदियां नारां ने। इसे करके बाणी विच थां पर थां मेरे सतगुरु पातशाह जी ने जदों परमात्मा के सन्मुख अपनी गल की, अपने आप नूं इस्त्री के रूप विच प्रगट किया, पेश किया। ढूंढेंदी लभ रही, खोज रही। मैं जिन्हों मिलना है, जिथे तक पहुँचना है, अपने जीवन का ये 2 तरह का सफ़र है, एक आत्मा का, एक तन का। जन्म तो इस सफ़र की शुरुआत हुई। माता के गर्भ विच आए, जन्म होया, एक खास दिन, एक खास तरीक जो साड़ी जन्म तरीक है, उस दिन तो इस तन की यात्रा शुरू हुई है। पर आत्मा की यात्रा जो है वो पता ही नहीं है भी कदों कदी शुरू हुई है, किन्ना क समा हो गया। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, किन्ने पता ही नहीं। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कितों कितों ये आत्मा हो के आई है, पता ही नहीं है। हुण आत्मा का ते शरीर का सुमेल बनिया, ये दोनों एक हो के तुरे। शरीर अपनी मंजिल वाल नूं बिना कोई जतन कीते दिन प्रति दिन वध रहा है। शरीर की मंजिल होर है, आत्मा की मंजिल होर है। शरीर की मंजिल है जन्म तो लेके बस मरना। आप अपने जिंदगी, अपने जीवन की, अपनी जिंदगी की व्याख्या करनी हो भी जीवन की है, जी रहे हैं, की कर रहे हैं, सौखा जिहा समझना होवे ते जन्म तो लेके मौत का दरम्यान का समा जिहड़ा ये जिंदगी है, सारे आप उस दिन वाल नूं अगे वध रहे हैं जिस दिन इस शरीर ने अपनी मंजिल ते पहुँच जाना है। शरीर की मंजिल है शमशान घाट, मड़ियाँ। कोई इनू साड़ देवे, कोई दफना देवे, कोई किसी होर तरीके ना
इस मिट्टी नूं टिकाणे ला देवे, वो वख-वख तरीका उहदे नाल कोई फर्क नहीं। पर शरीर की मंजिल मौत है, शरीर का खात्मा है, मड़ियाँ है, शमशान है। आत्मा की मंजिल शमशान नहीं, शमशान विच जाना है, सड़ना है, दफनाया जाना है। शरीर ने, आत्मा ने नहीं। शरीर दे शमशान तक पहुंचण तो पहला आत्मा की जो मंजिल है वो है परम आत्मा। एक पानी की बूंद की मंजिल की है। बरसात हुई, पानी की बूंद धरती ते डिगी, डिगदियां सार तुर पई। किसी ने पूछा, ठहर किधर चली है? आखदी अपनी मंजिल वाल। हुण पानी की एक बूंद की मंजिल की हो सकती है? उहदा मुकाम की हो सकता है? किथे पहुंचना है? उतरी कुछ होर बूंदा का साथ मिलिया, पर नाले च वह गई, नाले च वह गई। किसी नदी विच, किसी नहर विच, किसी दरिया विच हुंदी हुई। अनेक अपने रूप बदलदी बदलदी, अनेका तरह के उतार चढ़ा वेखदी वेखदी ये बूंद चली जा रही है, चली जा रही है। ये जीवन में ठहरा नहीं, टिका नहीं। जिदन टिका हो गया ये मंजिल ते नहीं पहुंचेगी, सफर विच है। अज यदी प्रसन्नता का, अज यदी खुशी का कोई टिकाणा नहीं। क्यों? मंजिल ते पहुंच गई। मंजिल की है? मंजिल है समुंदर। ये जिन्ने भी दरिया वग रहे ने, नहर वग रही ने, नदियां वग रही ने, किधर नूं जा रहे हैं सारे? ये पानी किधर नूं जा रहा है? समुंदर च जा रहा है। एक पानी की बूंद का लक्ष्य है समुंदर तक पहुंचना। क्यों? क्योंकि वो पानी की बूंद समुंदर तो ही आई है, समुंदर तो आई है। किते भी डिगी, वो पहाड़ ते डिगी, वो रड़े ते डिगी, वो उच्चे डिगी, वो शहर विच, वो ग्राम विच, किते भी डिगी, जिथे डिगी उतो ही तुर पई। ते मंजिल समुंदर है। रस्ते विच बड़ा बदले, नाम बदलिया, रूप बदलिया। किते ये नाला है, परनाला है, नहर हो गई, नदी हो गई, दरिया हो गई। रूप रस्ते च बदलते रहे और उन्नी देर तक बदलते रहे जदों तक समुंदर च जा नहीं मिली। जदों समुंदर च जाके मिली, फिर जिथों आई सी उहदा ही रूप हो गई। जदों तक उत्थे नहीं पहुंची उदों तक रूप भी वखरे वखरे, नाम ही वखरे वखरे। उत्थे पहुंच गई, उहदा ही रूप हो गई। जिवें उहदा रूप होई, अपना नाम मिट गया, अपनी हस्ती मिट गई। जिन्ने दरिया वगदे ने, जदों तक वो दरिया समुंदर विच नहीं पैंदे, उन्हां दे उदों तक नाम ने। तुसीं आखोगे रावी है, ये सतलज है, चनाह है, ब्यासा है, ये गोदावरी है, ये गंगा है, ये यमुना है, कहोगे। जिवें ये समुंदर च समा गए, इन्हां दा नाम खत्म हो गया। समुंदर विच समाए हुए इहनूं आखो की है? ये गंगा नहीं, ये गोदावरी नहीं, ये सतलुज नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये हुण उहदा रूप हो गया। इसे तरह का सफ़र जिहड़ा आत्मा का है। जदों तो परमात्मा ने इस अपने निक्के जे अंश नूं, आत्मा नूं अपने तो जुदा करके इस इन्हां शरीरां दे विच पा के भेजिया, उदों तो सफ़र विच है। किन्ना के पीछे सफ़र कर आया कोई पता नहीं, पर आ एक मौका है कि इस सफ़र का, आत्मा के इस सफ़र का मुका हो जाए, आत्मा परम आत्मा तक पहुँच जाए, लीन हो जाए। इसे करके अपने जीवन के ये दो वख-वख रस्ते ने। गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बाणी का एक बड़ा प्यारा बचन है। जदों सानू जीवन में थोड़ी जी समझ आउंदी है, थोड़े सियाणे हुए, गलबन 12-15 साल के नेड़े जाके मौत की समझ आई भी मौत की है। मौत वो शय है जिहड़ी साडे जीवन को खत्म कर दिंदी है। तो सतगुरु की पावन बाणी का एक बचन है भी शरीर को जदों ये समझ आई
भी अंदर वसदी आत्मा का जदों मेरे नालों विछोड़ा हो गया उस दिन मेरी मौत है। तो इस शरीर ने अपने अंदर वसदी आत्मा नाल गल की, शरीर की ते आत्मा की आपसी गलबात नूं, आपसी संवाद नूं मेरे सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा की। धन कहिया तू वस मैं नाले। शरीर ने आत्मा नूं आखिया भी तू मेरे नाल माता दे गर्भ तो तेरा मेरा साथ बनिया, तू मेरे नाल वस रहा है, तू आत्मा मेरे नाल वस रही है ते सदैव वसी। प्रिय सुख वासी बाल गोपाले, ये मेरे प्यारे भाव ही मेरी जिंद जीव आत्मा, आपां ते इकट्ठे बचपन के साथी हैं, माता दे गर्भ तो अपना साथ बने है। ये बाकी दे रिश्ते बाकी दे साथ ते बाद विच आए, तेरा मेरा साथ ते बड़ा पुराना है। आत्मा ने आख्या हाँ मैनू पता है, तेरा मेरा साथ बड़ा पुराना है, माता दे गर्भ तो अपनी शुरुआत हुई, तेरा बचपन मैं तेरे नाल, तेरी जवानी मैं तेरे नाल। शरीर ने आत्मा नूं आख्या कि मैनू एक गल का डर लगता है, मैं तेरे कोलों एक वचन लेना है, मेरे नाल एक वादा कर। आत्मा नूं शरीर ने आख्या कि तू मेरे नाल एक वादा कर, मेरे मन का तौखला, मेरे मन का यह डर दूर कर। आत्मा ने आख्या दस। शरीर का ते आत्मा का संबंध है, सुमेल है, तेरा मेरा साथ है, दस तेनू काहदा डर है। ते शरीर ने ना आत्मा नूं आख्या तुदे बिना हो किते ना लिखे। मेरी कीमत ताई है जे तू मेरे नाल है, ते जे तू मेरे नाल नहीं तो मेरी कोई कीमत नहीं। तू मेरे नाल है तो मैं सारा कुछ है, तू मेरे नाल नहीं तो मैं मिट्टी हाँ। तू मेरे नाल है जीवन है, तू मेरे नाल नहीं तो मैनू घड़ी नहीं किसी ने रखना, शमशान च पहुँचा देना। आत्मा ने आख्या बिल्कुल ठीक है, फिर दस की किया जाए। तो शरीर ने आख्या बचन दे, मेरे नाल वादा कर, मैनू बचन दे, छोड़ ना जासा है कि हे आत्मा तू मैनू छड़ के नहीं जाएंगी। शरीर की ते आत्मा की गलबात, बचन दे छोड़ ना जासा है, तू मेरे नाल वादा कर कि तू मैनू छड़ के नहीं जाएंगी। हुण आत्मा का जवाब सुनियो शरीर नूं। फिर कहिया हाँ हुक्मी बंदा, ठीक है तेरा मेरा साथ है, तेरा मेरा स्नेह है, मेरे करके तेरा जीवन है, मेरे करके तेरा सारा कुछ चल रहा है, मैनू पता है। पर मेरा तेरे नाल कदों तक रहना है, कितनी देर तक रहना है, ये साथ कदों तक निभेगा, ये मेरी मर्जी नाल नहीं, ये मेरी मर्जी नाल नहीं है। तो शरीर ने क्या क्यों तेरी मर्जी क्यों नहीं। आत्मा ने आख्या फिर कहिया हो हुक्मी बंदा, मैं ओदे हुक्म का बद्धा होया। किहदे हुक्म का? वो भारो ठाकुर जिस कान ना चंदा, जिहड़ा कालपुरख वाहिगुरू किसी की मुथाजी च नहीं, किसी की अधीनगी च नहीं, मैं ओदे हुक्म विच आ। फिर शरीर ने आख्या मैनू दस ते सही भी तू मेरे नाल कितनी देर तक रहेगा, ताकि मैनू पता लग जाए मेरे जीवन का जिहड़ा समा वो इन्ना क बाकी है, तो मैं अपने काम कार उस तो पहला पहला पूरे कर ला। आत्मा ने आख्या भी ये तो मैनू भी नहीं पता, जिचर राखै तिचर तुम संग रहना। मेरा मालिक जिन्नी देर तक मैनू तेरे नाल रखेगा उन्नी देर तक तेरे नाल रहना है। जा सदे तो ऊट से दासा ही, जिदन मैनू ओदा हुक्म आ गया मैं नहीं वेखना तेरे परिवार दे काम किन्ने बाकी ने, मैं नहीं वेखना तेरियां जिम्मेदारियां किन्नियां बाकी ने, मैं नहीं वेखना तेरी धन दौलत कारोबार, क्योंकि मैं ओदी हुक्म दा बद्धा। जा सदे तो ऊट से दासा ही, जिदन उन्हें सद लिया उदन मैं चले जाना है। तो फिर इस तरह ही हुंदा है, जदों जीवन का वो समा आ गया तो फिर ना धन पुछी ना मता पकाया वाली गल,
जदों समा आ गया तो आत्मा परमात्मा के हुक्म अनुसार अगे नूं तुर गई, शरीर शमशान नूं तुर पिया। उस दिन तो पहला पहला जे आत्मा का परम आत्मा नाल मिलाप हो जाए तो बूंद समुद्र विच समा गई, तो जे बूंद समुद्र तक नहीं पहुंची फिर इहदा नवा अगे सफ़र शुरू होएगा। शरीर नवा मिल जाएगा, फिर नवी शुरुआत। इसलिए बूंद समुद्र विच समा जाए, उत्थे तक पहुंच जाए, आत्मा का परम आत्मा नाल सुमेल हो जाए, जितों आए हैं उत्थे तक पहुंच सकी। इसलिए साहब कहते मैं जिंद जीव रूप आत्मा ओदी भाल विच आ, ते उन्होंने लभण वास्ते मैं जतन की कीता, हौं ढूंढेंदी सज्जणा, उन्होंने मैं लभ रही हाँ। हुण इत्थे गल हो रही भी लभ्या उन्होंने जांदा जो गवाचा होवे। ते जे तुसी बहुत बरीकी नाल इस विषय को समझोगे ना तो गवाचदा कदी भी कुछ नहीं है। मैं ना मेरे पैसे गवाच गए, मेरा पर्स गवाच गया, मेरा बटुआ गवाच गया, मेरी चाबी गवाच गई, कुछ भी मेरा बैग गवाच गया, वो नहीं गवाचदा। वो तो जिथे हुंदा उत्थे हुंदा ही है। ओदी याद मेरी सुरत चो गवाचदी है, ओदी याद गवाचदी है। मैं अपना पर्स कित्थे रखिया, वो जिथे रखिया उत्थे उत्थे ही पिया, उत्थे नहीं गवाचा। मैनू याद रहिंदा ते नहीं सी गवाचा, मेरी याद चो चला गया, मेरी सुरत चो चला गया, वो याद विसर गई भी कित्थे रखिया ते गवाच गया। जदों भी जो कुछ गवाचदा है वो मेरी सुरत चो गवाचदा है। जो कुछ मेरी सुरत विच है वो गवाचिया नहीं, जो मेरी सुरत चो चला गया वो गवाच गया। आपां कई बारी वेखदे हैं, कई बारी अपने नाल आपां बाजार जाने किसी काम, आपां नूं उत्थे कोई चीज़ वेखदे हैं चंगी लगदी है, पसंद आउंदी है, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ 500 700 400 ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਖੀਸੇ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਪਏ। ਫਿਰ ਆਨੇ ਲੈ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਆਈ ਸੀ, ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋਲ ਸੀ पर कोल हुंदियां भी कोल नहीं, क्यों? मेरी याद च नहीं सी, मेरी याद चो विसर गए। हर एक वो शै तुहाडे तो दूर नहीं जो तुहाडी याद विच है, ते जो तुहाडी याद विच नहीं वो तुहाडे कोल हो के भी कोल नहीं। पेन जेब विच लाया होवे है, जेब विच, याद विच नहीं। तो दूसरे तो मंगोगे भाजी पेन हैगा, बंदा जी तुसीं आप ते लाया, फिर याद आउंदा ओ नहीं मैं सी ते कोल ही, याद विच नहीं सी। इस तरह का ही ये सिलसिला परमात्मा के संबंध विच है। परमात्मा तो किते भी गवाचा नहीं, बाहरों किते भी गवाचा नहीं। जे गवाचा तो सच्ची मेरी याद चों गवाचा, मेरी सुरत चों गवाचा है। मेरी सुरत विच नहीं तो मेरे लिए गवाचा है, सुरत विच होवे ते गवाचा नहीं। हौं ढूंढेंदी सज्जणा, मैं उन्होंने लभण तुरी, ते जदों लभण तुरी तो फिर जिवें गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी ने आवाज़ दी सी ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। उदों फिर समझ आ गई सज्जण मैंडे नाल, जिन्हों मैं बाहर लभण जाना है, उत्थे बाहर नहीं है। हाँ है उत्थे भी, ये नहीं कि उत्थे नहीं है। जे आखिए भी वो तीर्थ ते नहीं है या पहाड़ों ते नहीं है, जंगलों च नहीं है, नहीं है उथे भी। पर इसका मतलब नहीं भी कला उथे है, इथे नहीं, वो इथे भी है, हर एक जगह ते। जीवन में जल में तल में सब रूपन में सब भूपन माही, सूरज में सस में नभ में, जय हीरो तहाँ चित लाए तहाँ ही पावक में, और पौन हूँ मैं पृथ्वी तल में सो कहाँ नहीं जाई, व्यापक है सब ही के बिखे किश पाहन में परमेश्वर नाही। सारी थावां ते है। गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन, देहो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो।
मैं जिन्हों मिलना चाहनी हाँ मैनू कोई ओदी खबरसार दसे, कोई जन हरस्यो देवे जोर, कोई दसे, कोई ओदे नाल जोड़ देवे, कोई मैनू विछड़ी नू मिला देवे, कोई आण मिलावे। मेरा प्रीतम प्यारा हुण तिस पै आप विच आई। किन्ने बचन ने महाराज दी बाणी दे। पैसे दी, धन दी, परिवार दी, दुनियादारी दी गल ते बहुत करते हैं। नहीं, मैनू मेरे उस मालिक दी कोई गल सुनावे जिहदे नाल मैं मिलना चाहनी है। तो बचन पढ़ियो, तो साहिब की बात जे आखे कहूँ नानक क्या दीजा। साडे परिवार का कोई जीव साडे तो जुदा हो जाए, विछड़ जाए, गवाच जाए, आप इश्तिहार वंडते हैं। जे कोई मेरे विछड़े हुए भरा का मैनू पता दस दवे, मैं 10,000 लाख 2 लाख 5 लाख उन्होंने इनाम देंगा। तो इश्तिहार पढ़ते हो ना, क्यों? क्योंकि मैं अपने अजीज नू मिलना चाहना, जिहड़ा मेरे तो विछड़े है, मैं उन्होंने मिलना चाहना है। ये दुनियावी रिश्तियां विच विछोड़ा पैंदा, इन्नी तड़फ हुंदी है। काश किते इहो जी तड़फ उस वाहिगुरू दे प्रति अंदर प्रगट हो जाए, इहो जी तड़फ किते अंदर पैदा हो जाए। देहो संदेसरो कहियो प्रिया कहियो, कोई ते आके सही गल दसे, नहीं तो बाहरों तो जिन्हों पूछो बिसम भई मैं बहुविध सुनते कहो सुहागन सहियो। मैं तो हैरान हो गई लोगों को वख वख तरीके ते वख वख रस्ते सुन के। अज वख वख तरीकों ने, वख वख रस्तियां ने मेरी कौम का बहुता नुकसान किया। हर एक थां की मर्यादा वक्री, हर एक थां का रस्ता वखरा, वो कुछ दसदा, कुछ दसदा। इत्थे जाओ कुछ होर, उत्थे जाओ कुछ होर। आंदे जी नहीं आ तरीका नहीं ठीक, दूजा आ तरीका नहीं ठीक। बाहरों कोई दूजा उन्ना साडी कौम का नुकसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकिया और नहीं कर सकेगा जिन्ना आपां खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। सियाने लोग कहते सी भी फुट चंदरी जिन्हां दे घर वड़ गई राजियां दे राज गालते। सब तो वड्डा जिहड़ा दुश्मन है ना किसी भी परिवार का, किसी ग्रां का, किसी मुल्क का, किसी कौम का, वो है उहदी अंदर दी फुट। बाहरों कोई उन्ना नहीं कुछ कर सकता जो अंदरली। तो अज आपां वेखो फड़नी सी एक दूसरे की बाह, पियाओ रल मिल के बैठिए तो कट्ठे होइए, कट्ठे होके एक ताकत बन के अगे तुरीए। बाहवां छड़ के, बाह फड़नी छड़ के, लत्तां फड़ फड़ के खिंच रहे हैं भी तू नहीं नहीं वो ठीक नहीं मैं ठीक हाँ, वो ठीक नहीं मैं ठीक हाँ। आई कुछ हो रहा है। इन्हां तरीकों ने ही भंबल भूसे च पा दिता। को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब मैं ही हो। कि सुना? कोई आंदा नहीं नहीं रब पहाड़ा च है, कोई आंदा नहीं किसी ने गलत दसिया तीर्थ ते है, कोई आंदा नहीं नहीं गलत दसिया जी केवल मक्के है। दूसरे ने पूछया भी मक्के उत्थे जावा, नहीं वो इधर है। हद हो गई, जावा किहड़े पासे? दखण देश हरीका वासा, एक ने मैनू आ दसिया, दूसरा आंदा नहीं झूठ बोलता, पश्चिम अल्लों मकामा उत्ते लहिंदे वाल रहिंदा। हद हो गई, किधर जावा? इन्नी असमंजस, इन्नी कन्फ्यूजन, मैनू किधर जावा? को कहे तो सब बाहर बाहर, को कहे तो सब मैयो। बरना दी सै चेन लखीए सुहागन सात बुझाइयो। हे रब नाल मिलिया हुई सुहागना जीव रूप इस्त्रियो, तुसीं मैनू सात बुझाइयो। सत माने सत सच, मैनू तुसीं सच दसियो। मैनू इस तरह ना दसियो कोई इधर इधर, मैनू दसियो सच भी कित्थे है। तो मेरे साहब ने कृपा की, नानक कहे तो सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो। जदों कोई भी उन्होंने याद करके किसी भी नाम नाल पुकारदा ना, सौखा कह लिए जदों कोई आखदा वाहिगुरू, बस वो रसना ते बैठा है, वो इन्ना नेड़े। किसी ने आख्या बड़ी दूर, रविदास जी तो पुछो, कहते नहीं एवं झूठ बोलते हैं, कितने दूर? कहे रविदास हाथ पै नेरे सहजे हुई सो हुई। जिन्हों मैं बाहर ढूंढन तुरी सज्जन मैंडे नाल, जन नानक अलख न लखी है। अपने तरीके ना, अपनिया जुगतियां ना, लोगों के सुने सुनाए रस्तियां ते तुर के कख पता ना लगा। किवें पता लगा? गुरमुख देह दिखाल,
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਦਿਖਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਿਆ, ਦਿਖ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਦਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਅਪਣਾਇਆ, ਦਿਸ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਿਆ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਉਹ ਤੀਰਥ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤ ਸਮਝਾਈ। ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਸਵੈਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰ, ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰ। ਰੱਬ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਵੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਮ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀਤ ਲਾਈ ਤਿਨ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਵਿਸਰ ਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਵਿਸਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਚੇਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ? ਉਦੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਨਮੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ। ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਤੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਰੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਬੂ ਨਾ ਬਿਸਰੇ ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆ ਲੈ, ਆ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਲੈ। ਉਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ ਲਾ, ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕੁਝ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋੜੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜੀ, ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਕਿੱਥੋਂ ਟੁੱਟੀ? ਹੁਣ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ ਕਿਧਰੋਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ, ਮੇਰੀ ਝੂਠ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਲੋਭ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਮੋਹ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਹਉਮੈ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਹੋਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ,
ये प्रीत कितों मिलती जे? ये कितों भी नहीं मिलती। और ये प्रीत मिलती गुरु कोलों। नानक प्रीत लाई तिन सच्चा है, मेरा मालिक ये प्रीत आप लाउंदा है, जिहदी झोली विच ये दात आप त्रुट के पावे, तिस बिन रहन ना जाई। ते जदों मिल गई प्रीत उदों फिर उहदे तो बिना रिहा ही नहीं जाता, उहदे तो बिना रिहा ही नहीं जाता। फिर जीवन की व्याख्या इस तरह की बन जाती है, आखां जीवा विसरे मर जाऊं। फिर जीवन की अंदर की दशा यह है, तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जियो। प्रीत विच मगन रहना ते आनंद, एक किन पल विसरे तू स्वामी जानो बरस 50। इन्ना दुख मोह रहन ना विहावे, नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो, तिस बिन रहन ना जाइए। थोड़े थोड़ा जिवें जिवें महामारी के दौरान अपने अपने घरों में गुरु की सिख संगतां बैठियां सन, हुण खुलिया ना, संगतां आउंदियां ने मिलदियां ने, पता लगता किन्ना प्यार है गुरु करना, किन्ना प्यार है शब्द ना। आके दर्शन कर करके निहाल होंदियां ने, कईयां दे ते नेत्रां चों जल वहन लग जाता। शुक्र है सच्चे पातशाह मुड़ तेरे दीदार हुए, इन्ना समा तेरे दर्शनां तो वांझे रहे। मोह रहन ना विहावे, नींद ना आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो, तिस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले तो पूरा पाइए। आ जाओ तो कितों तुरे सी, हों ढूंढेंदी सज्जना ओदी भाल च ना, ओदी भाल च तुरना है, उन्हों छड्ड, ओदे तो पहला गुरु कोल आ जा। आपां जीवन में सफ़र करते ना, सफ़र दो तरह का होंदा है। तुसी बस का कर लो, ट्रेन का कर लो, हवाई जहाज़ का कर लो, दो तरह का सफ़र है। एक सफ़र होंदा जे मान लो बस का करना, अपने घर तो चल के बस अड्डे तक आना, उतों बस फड़ी फिर अगला सफ़र। मान लो ट्रेन ते जाना, अपने घरों तुरे स्टेशन ते आ गए, इतों अगला सफ़र, ट्रेन ते बैठे अगला सफ़र। जहाज़ ते जाना, अपने घरों तुरे एयरपोर्ट पहुँचे, जहाज़ ते बैठे, इतों अगला सफ़र शुरू होया। तुसी सारिਆਂ ਦਾ ਇਹ तजर्बा ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ सफ़रां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ औखा सफ़र ਕਿਹੜਾ है? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ जहाज़ ਵਿੱਚ बैठ के अगला सफ़र भावें वो हज़ारों किलोमीटर का होवे, वो औखा नहीं। औखा हुंदा घर तो लैके जहाज़ तक बैठण का सफ़र है, थोड़ा जिहा 10, 20, 50 किलोमीटर, 100 या 200 किलोमीटर मान लो, बड़ा औखा। छेती छेती तुरो, भजो, जाओ, टाइम सिर जाओ, ये थोड़ा जिहा सफ़र औखा है। क्यों? क्योंकि ये सफ़र आप करना है, इसलिए औखा है। घर तो लैके बस अड्डे तक का सफ़र बड़ा औखा, क्योंकि मैं आप करना है। घर तो लैके स्टेशन तक का सफ़र बड़ा औखा है, मैं आप जो करना है। टैक्सी फड़ो, आटो लो, कोई छड्डण जावे, जिद्दा किद्दा करके टाइम सिर पहुँचो। तुसीं जाके ट्रेन च बैठ गए, बस च बैठ गए, जहाज़ विच बैठ गए, जेब चो रुमाल कढ़ दिओ, पसीना पूज दिओ, ठंडा जिहा साह लैंदे हो, बस चंगा होया। क्यों? हुण तुसीं भजे भजे आ रहे सी, इन्नी बेफिक्री सी, हुण तो ही बेफिक्र हो गए। क्यों बेफिक्र हो गए? अगला जिहड़ा सफ़र है ना, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ बैठ गए हो, अगला सफ़र बस ने ਤੁਹਾਨੂੰ आप पहुँचा देना है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ट्रेन 'ਚ बैठ गए हो, अगला सफ़र ਤੁਹਾਡਾ ट्रेन ने आप तय करके पहुँचाना है, ਤੁਸੀਂ कुछ नहीं करना। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ जहाज़ 'ਚ बैठ गए हो, अगला भावें हज़ारां किलोमीटर का सफ़र है, उन्हें आप ਤੁਹਾਨੂੰ उत्थे तक पहुँचाना है। ਤੁਹਾਡਾ की कर्म है, ਤੁਸੀਂ की करना है? ਤੁਸੀਂ सिर्फ घरों चल के उत्थे तक पहुँचना है। जे तुसी परमात्मा तक पहुँचना है ना, ये गल एदी फिक्र तुसी छड्डो, तुसी घरों चल के केवल गुरु तक आओ। अगला काम गुरु दा है। गुरु कोल आके ढह पै द्वारिया हो जाओ, मिलाउना गुरु दा काम है। ते साहब जी ने कृपा की, सतगुरु मिला, जदों पूरा गुरु मिल गया, पूरे गुरु वाले हो गए, तो पूरा पाइए गुरु वाले हो गए, गुरु मिल गया। गुरु दे मिलन दे नाल वो अकाल पुरख वाहिगुरु भी मिल गया। हर रस रसन रसाई,
गुरु ने ऐसी जुगत समझाई भी परमेश्वर परमात्मा के नाम नाल ऐसा जोड़िया, जप जप के रसना ते ओदा रस आउण लग पिया। जदों तक लोकां कोलों उगतियां जुगतियां सिੱਖੀਆਂ ना इदा उदा उदा भंबल भूसिया जी पै रहे, गुरु कोल आके जीवन की जुगत सीखी, रसना ते रस आ गया। और रसना भी वही है जिथे रस आ गया, ते ओदे नाम का जदों रस आया तो फिर वो जो जीवन का आनंद है ना, वो किते होर नहीं पौड़ी। कोई गावे, को सुने, को उचर सुनावे। कोई उस मालिक वाहिगुरू के गुण गाउंदा है, कोई सुनता है, कोई उचर सुनावे, कोई उचार के दूसरे नूं सुणाउंदा है। आपां उहदे गुणां नालों ज़्यादा होर बहुता कुछ सुनते हैं, बहुता कुछ सुणाउंदे हैं। पर जिहड़े जुड़े हुए ने ना आंदे नहीं कुछ होर सुनना नहीं, कुछ सुनाउणा नहीं। जन्म जन्म की मल उतरे मन चिंदिया पावे। जेड़ा भी ओनू गाएगा, कोई गावे को सुने। जेड़ा भी कोई ओनू गावेगा, ओदी सुनेगा एक दी, एको जप एको साला। ओंकार दी मेरे साहब ने गल की तो पहला एका पा दिता। साडा सारा सिद्धांत उस एके दे चौगिरदे घूमदा। एक दे पुजारी असी, एक दे पुजारी हाँ असी, दूसरे दे पुजारी नहीं। दूसरे दा किसे दा असी सत्कार करदे हो पक्ष दूजा, पुजारी एक दे आ। क्योंकि इको साडा तुरा है, इको साडा तुरा ते साडा ओही तुरा है जिस तुरे नाल सानू गुरु नानक पातशाह जी ने जोड़िया। और दुनिया के लोगों ने तो किथे किथे जोड़ दिता, अज भी जोड़ी जाते हैं। कोई किसी पासे नूं जोड़ दिंदा जी साडा पिछोकड़ आ है जी, साडे वड वडेरे आ है जी, असी इन्हां दी वंश, असी उन्हां दी वंश, पता नहीं किधर किधर लोकी। कोई किसी स्वार्थ करके कर दिंदा होगा, कोई किसी लालच करके कर दिंदा होगा। साडा धुरा उही है जो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी ने बख्शिया। साडा धुरा उही है जो गुरु नानक पातशाह जी ने बख्शिया। ते साडा धुरा मेरे सतगुरु जी ने एक बख्शिया, एक। हाँ, एक करके झगड़ा नहीं। तुसी ओनू अल्लाह आखो, कोई झगड़ा नहीं। तुसी ओनू रमिया होया राम आखो, कोई झगड़ा नहीं। रमिया होया घट घट मैं हर जू बसे, कोई झगड़ा नहीं। कोई नारायण आखो, कोई गोविंद आखो, कोई बीटल आखो, की झगड़ा है वही। पर जे उस एक तो बिना कोई आखेगा जी यदा पुजारी होदा, नहीं। गुरु दा सिख किसी होर दा पुजारी नहीं, गुरु दा सिख किसी होर दा उपासक नहीं। सवैया पढ़ लो, हर रोज पढ़ते हैं, गल स्पष्ट हो गई। पाए गहे, इनू बरीकी ना पढ़ना तो पकड़ लेना। दोहरे च भी आ शब्द आता है, सवैये च भी आता। सगल द्वार को छाड़ के गहे हो, उत्थे शब्द वाल ध्यान दिओ, विच हा है, गयो नहीं है। क्योंकि आप द्वार भावो दे घर नूं जाना तो आप गयो पढ़ लेने, गयो चले गए नहीं। गयो हा है ना, गयो का अर्थ है पकड़ लिया। सारे छड़ के एक दा द्वार पकड़ लिया। तो मेरे साहब हुण तू कृपा करी लाज रखी सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, फड़ ले, शब्द ना जुड़ गए। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, अनेक लोकी आंदे ने। लोकी आखण मैनू कोई इतराज नहीं। किसी का अकीदा, किसी की भावना है, किसी की शरधा है, साडा किसी ने वितकरा नहीं। पर मेरा सिख का जो जीवन है, मत एक ना मानियो, मैं इके नाल ही जुड़िया है। मैं एक तो बिना किसी होर दा पुजारी ते उपासक नहीं। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे, मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे, हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो, सब तो ही बखान्यो। रोज पढ़ते हैं ना, एक दा पुजारी सिख। ते जेड़ा एक नाल जुड़दा, एक नूं गाउंदा, एक दी सुनदा, एक दी गल सुणाउंदा, जन्मां जन्मांतरां दी मैल कट्टी जांदी है। मन चिंदिया पावे, मन इच्छत फल उन्होंने प्राप्त हो जाते हैं। और इत्थे गल होर, जिहड़ा उन्होंने एक नूं गाउंदा है, सुनदा है, उहदे फिर मन इच्छत फल ये नहीं होंदे भी मेरे को कार वड्डी हो जाए तो मेरा घर वड्डा हो जाए,
तो मेरे को पैसे बड़े होने ते मेरे वर्गा कोई अमीर ना हो, उसकी आ इच्छा नहीं होंगी। उसकी केवल इच्छा यही होंगी भी सतगुरु तेरे नाल जुड़िया रवां, बस विछड़ा ना। ये ओदी मन चिंध्या पावे, ओदी मन की इच्छा मेरे सतगुरु जी पूरी कर देंदे ने। आवन जाना मेटिया हर के गुण गावे। जम्मण मरण का दुख कटिया गया, तो किवें कटिया गया? हरि दे गुण गाउंदिया, गुण गाउंदिया। ते गुण गाने ने ते गुण गाउना होएगा कि गुण गावत तेरी उतर समैल, बिन सजाए होमे बिक फैल। सिंह साहिब जी ने साहिब गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह जी दे 400 साल अवतार का जिक्र किया। तो मेरे साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी जो आप सारे बड़े प्यार ना सत्कार ना 9वें महले के श्लोक पढ़ते, आप भोग के श्लोक भी जिन्हों कहने उत्थे जो पहला बचन पढ़ोगे ना गुरु तेग बहादुर महाराज जी का, तो मेरे सच्चे पातशाह जी ने एक गल की साडे नाल, आखिया चेते रखी। गाउण तो गल शुरू की, गुण गा गुण गा गुण गा। तो साहब कहते जे तो तू गा लै तो मंजिल ते पहुँच गया, तो जे नहीं गाए तो सुन। गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन। जे नहीं गुण गाए मता समझी भी पैसा बहुत इकट्ठा कर लिया, मकान बड़े वड्डे बना ले, तो बड़ा कुछ जीवन च प्राप्त कर लिया। साहब कहते नहीं, कख भी नहीं तू कीता, जन्म व्यर्थ चला गया। साहब गुरु तेग बहादुर पातशाह 400 साल मेरे सतगुरु जी का अगला जो प्रकाश गुरपुरब आना है वो शताब्दी के रूप में मनाया जाना। तो दिल्ली दे विच इस महान शताब्दी गुरपुरब का केंद्रीय स्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब है। आप संगतां के सहयोग नाल दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत वड्डे पद्धर ते ओहदियां तैयारियां लिखियां ने। अगला जिहड़ा भीड़ भड़के वाला सारा रस्ता सी ना, वो हुण जाके तुसीं वेखोगे लहरां बहरां हो गई, कैसी सुंदरता उधर बनी है। पर वो सड़क वो रस्ता वो तो सरकार का काम है, उत्ते सरकार ने बना दिता। तो गुरु घरां दी सुंदरता तो सिख ने, ये सेवा तो सिख ने है ना करनी है। नाले अरदास विच पढ़ते हैं ना, जिन्हों ने गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, गुरु घर की सेवा संभालते मेरे सतगुरु जी ने सिख की झोली च पाई है। तो वड्डे पद्धर ते उत्थे 2 सेवावां होने शुरू होने वालियां ने, बस 2-4 दिन शुरुआत हो रही है। आधुनिक तरीके की किचन ते लंगर हाल की नवे सिरे तो सारी सेवा। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पावन सचखंड साहिब सुखासन स्थान की सेवा नवे सिरे तो सारी। और ये सेवावां जिहड़ियां रोज़ रोज़ नहीं होंदियां, कदी किते स्वभ बनता है तो सतगुरु पातशाह महाराज जी आप त्रुट के इहो जिहा अवसर प्रदान करते हैं। तो आप सारे इस सेवा विच यो कह लीए भी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी दे ये 400 साल अवतार गुरपुरब तक जिथे जिथे भी गुरु का सिख गुरु नानक नाम लेवा बैठा, अपने दसवंध की माया गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के नाम ते कढ़नी शुरू करो। तो गुरमत ने सानू एक होर देखो नियम दिता, है नहीं भी तुसी लख दियो करोड़ दियो, नहीं, यथा शक्त जिन्नी तुहाडी समर्था उन्नी दियो। 5 रुपये 2 रुपये मेरा गुरु ते भावनी भगत पाए कौडी अगर भाग राखे ताहे गुर सर्ब निधान दान देत है। उस सेवा में हिस्सा पाने वास्ते आप जी दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रबंधकों नाल संपर्क कर सकते हो। सन्मान सत्कारयोग सिंह साहब जी के नाल आप जी संपर्क कर सकते हो। दासरियां की सेवा मेरे सतगुरु जी ने कृपा की, हैड ग्रंथी की सेवा सतगुरु पातशाह जी ने उत्थे बख्शिश की जी। तो गुरु ग्रंथ साहब पातशाह महाराज जी का कोटान कोट शुकराना आप संगतां दा, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद। आप ये सेवा प्रबंधक जनां नाल मिल के सिंह साहब जी के नाल संपर्क करके दासरियां नाल संपर्क करके किसी भी तरह की जो आप जी सेवा कमानी चाहते हो ये कमा सकते हो। तो जिहड़ा गुरु का सिख सेवा कमाउंदा है तो मेरे साहब जी की सेवा की कभी व्यर्थ नहीं जाती। जन्म जन्म की मल उतरे मन चिंदिया पावे, आवन जाना मेटिया हर के गुण गावे। तो जिहड़ा उस एक नाल जुड़ गया वह जम्मण ते मरण का दुख मिट गया, आत्मा का
परमात्मा नाल मेल हो गया, बूंद सागर विच समा गई। आप तरह संगी तराहे, सब कुटुंब तरावे। आप भी तरदा, संगी साथियां नूं भी नाल तार लैंदा, अपना सारा कुटुंब कबीला सारे परिवार नूं भी तार लैंदा। जन नानक तिस बलिहारणे, जो मेरे हर प्रभ भावे। जिहड़ा एक नाल जुड़दा है वो मेरे सतगुरु नूं बहुत चंगा लगदा है, ते जिहड़ा मेरे सतगुरु जी नूं भा जांदा है, मेरे साहब कहंदे मैं उहदे तो सदके जावां, उहदे तो कुर्बान जावां। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरे नाम जपावे। जन नानक तिस बलिहारणे, जो मेरे हर प्रभ भावे शुद्ध। इस दे नाल ही वार दी संपूर्णता है। भुल्लां गलतियां दी खिमा। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी का समूह गुरु की संगत का हार्दिक तौर पर धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।